प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। All right, so we are on the 11th chapter. इसको कौन unmute पे है? या और अलग अलग इंटरप्रिटेशन विमला जी ने दिए। उन्होंने कहा कि देखो, मैं अलग दृष्टिकोण दे रही हूँ, आपकी मर्जी कि आप ये विश्व रूप दर्शन जो है उसको आप किस तरह से देखना चाहते हो, वेदर यू वांट टू लुक एट इट फिगरेटिवली, वेदर यू वांट टू लुक एट इट लिटरली, वेदर यू वांट टू लुक एट इट एज अ मिरेकल, और whatever you want to, it's your choice. All right, so who am I am only opening for you the different ways of understanding the 11th chapter. ये हमने शुरुआत की, अब आगे का पढ़ती हूँ। The perfume of that freedom, the vigor, the vitality, the resplendence, it has to be lived. अगर मुक्ति का अनुभव होता है तो मुक्ति के अनुभव से हमें जीवन व्यतीत करना होगा। You just can't go on saying I am unattached now, there is renunciation now that I have taken sannyas. Those intellectual claims are meaningless. आप बोलोगे मैं वैराग्य में हूँ, मैंने तो बस मैं बैरागी बन गया हूँ, तो उसमें कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा सरेंडर, समर्पण, ये हर पल, हर क्षण, हर कृति में दिखना जरूरी है। Amongst 1,001 perhaps as the patience and perseverance to live that freedom. I thought I should clarify why Arjuna was frightened. It is not only Arjuna who was frightened, you and I also get frightened. So yesterday what we read, Shailaja, for you, Arjuna was frightened in the first chapter, and Arjuna is frightened after he sees the Vishwa Swarupa of Krishna. And he says, Lord, I cannot see it. Please come back to your normal human form. So here she is saying it's not just Arjun, we are Arjuns, right? So we all get frightened when we are face to face. If you remember, I gave the example that we have this grand intellectual ideas over here about what a Kundalini Jagruti might feel like. But when actually the Kundalini goes into Jagruti, you will probably be so scared or in so much of fear about what is happening in my body, what is happening in my mind. एम आई गोइंग क्रेजी, क्या मुझे स्ट्रोक आ रहा है, अटैक आ रहा है, क्या हो रहा है, राइट? ये हो सकता है। तो हम यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली वो वैसी ही होगी ये नहीं कह सकते हम। सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ फ्राइटन्स यू। तो क्यों डर लगता है? जब वो सत्य का जब अनुभव होता है, तब वो समझ में जब आता है, तब डर जाते हैं हम, बिकॉज you are afraid that the dimension of truth will compel you to change your way of living. क्यों डर जाते हैं? कि ये अब अनुभव सत्य का हमने ले लिया तो हम पहले की तरह जी नहीं सकेंगे। हम पहले की तरह जिस तरह से चलते बैठते उठते बोलते थे वो अब हम नहीं कर सकेंगे। इट विल डिस्ट्रॉय योर स्टेटस को। तो आपकी जो परिस्थिति थी वो खत्म हो गई। इट माइट टर्न एवरीथिंग टॉपसी टर्वी। आपकी पूरी जिंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी। You would like the understanding of truth to allow you to continue the old physical and mental ways of living, the culture that you have built up for yourself. And you are afraid that if the truth is understood, it will create an inner compulsion and dismantle, demolish your previous way of living. जो जिस तरह से जीने की हमें आदत पड़ गई है बरसों से, सिर्फ बरसों से नहीं, शायद जन्मों से, अचानक वो बिल्कुल बदल जाएगा। उस चीज का हम उस चीज के वो सत्य जब सामने आता है, वो जब हमें समझ में आता है, तब हम डर जाते हैं। Like Arjuna, we are so afraid when the Gita points out to us, or Patanjali through the Yoga Sutra points out to us, that liberation is possible for every human being, that suffering can be ended. The claim of Patanjali is that the ending of psychological suffering is within reach of every human being.
ये अभी हम लोग भी जो भी कुछ कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, कर्म योग पढ़ रहे हैं, ज्ञान योग पढ़ रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इतने सालों से हम योग अभ्यास कर रहे हैं। आखिर हम जिंदगी में चाहते क्या है? अल्टीमेटली अगर आप ऊपर का सारा कवरिंग हटा दो, अल्टीमेटली हम लोग सब दुख से मुक्ति चाहते हैं। हमारे लिए मुक्त होना यानी दुख का अंत होना। अब आप कहोगे दुख का अंत कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, कोई कुछ बोल जाता है, कोई कुछ कर जाता है, कैसे दुख का अंत हो सकता है? तो हम मानने को तैयार नहीं है। और वो अच्छा कैसे हो सकता है पूछते हैं, और फिर ये हम अभ्यास करने बैठ जाते हैं कि भाई ये दुख का अंत कैसे होगा। सुनते तो है, समझते तो है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक्चुअली जब वो मुक्ति मिलती है, एक्चुअली दुख का अंत जब हो जाता है, तब हम डर जाते हैं। तो और ये दुख का अंत यानी मुक्ति। फिर और क्या करना है? अगर लाइफ में दुख नहीं है तो ऑल इज वेल ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ना अभ्यास की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अगर दुख से हम मुक्त है तो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ राजयोग। You can call it the yoga of meditation, of awareness, of understanding. Any name can be given to that. It is comprehensive, it is holistic. No more a question of changing ideas, no more a question of filling your brain with a new way of living intellectually. It is a holistic transmutation of the physical and the mental together that is required and demanded of the enquirer. हमने इंक्वायरी से पहला सेंटेंस भगवत गीता का विमला जी ने स्टार्ट किया था कि हम लोग कौन है? हम लोग इंक्वायरर है, हम सत्य की खोज में निकले हैं और हम सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जब ये जब सवाल पूछते पूछते इसका जवाब जैसे आते जाता है, हमारी ध्यान में आता है कि मन और शरीर हमारा पहले जैसे था, अब वो वैसे ही फंक्शन नहीं कर सकता। So Arjuna says to Krishna, I have seen in your body the whole dance of creation and dissolution. You are beginningless, endless. You filled the cosmos. I had not realized it before. I looked upon you as a limited human being and thought of you as my friend, my brother. And I was laughing with you, cutting jokes with you, taking liberties with you. Now I realize that you represent the ultimate principle of sovereignty. You are Ishvara. I bow down to you, and as the rishis, the sages of ancient days, surrendered themselves to you, O Krishna, O you, the Lord of creation, you are the Lord of death and dissolution. I bow to you from all directions. तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि मैं तो अब मैं जो समझ गया हूँ कि आप कौन हो। हाँ, आप वो you are the creator, sustainer and the destroyer, all of it put together. Destroy तो नहीं होता, डिसोल्यूशन। तो लय भी आप में है, जन्म भी आप में है, सब कुछ आप में है। और मैं तो आपको सिर्फ एक मनुष्य, एक भाई, एक मित्र की तरह देखता था, मस्ती मजाक आपसे करता रहता था। पर अब मैं समझ गया हूँ आप कौन हो, और मैं आपको साष्टांग नमस्कार करता हूँ, या हर तरह से मैं आपके आपके नमन में हूँ। दैट फॉलोज अ नंबर ऑफ हिम्स इन विच अर्जुना प्रेजेस श्री कृष्ण डिवाइन नेचर। और आगे के कुछ श्लोक अर्जुन स्तुति करते हैं कृष्ण की, और दैवी अवतार की स्तुति करते हैं, उसके कुछ श्लोक है। वो सब सब कुछ कृष्णा शांति से सुनते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दैट वेरी पेशेंटली, बहुत धैर्य के साथ, कृष्णा टर्न्स टू अर्जुना एंड सेज, धीर के साथ, नॉट धैर्य के साथ, कृष्णा टर्न्स टू अर्जुना एंड सेज। कृष्णा सब जब वो सारी स्तुति खत्म हो जाती है, तो कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, इफ आई हैव फिल्ड द कॉस्मोस, पूरे ब्रह्मांड को मैंने व्याप लिया है, और पूरे ब्रह्मांड में मैं हूँ। हैव आई नॉट फिल्ड योर बॉडी टू, तो क्या तुम्हारे अंदर भी कण कण में मैं नहीं हूँ? एम आई नॉट देयर इन यू, विद इन यू? वाई डोंट यू वेक अप टू योर डिवाइन नेचर? डू नॉट थिंक दैट आई एम द ओनली डिविनिटी, बट द डिविनिटी इज ऑल्सो विद इन यू। आपके तो पेशी पेशी में मैं हूँ, सेल सेल में मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ, तो आप यानी मैं ही हूँ। तो खुद को कृष्ण क्यों नहीं समझते तुम?
So from the material and mental being, why don't you become a divine being? हाँ, मनुष्य तत्व शरीर और मन जिसका है, ये मनुष्य तत्व से देव तत्व में क्यों नहीं आते? Like me, so that all your actions have the flavor, the perfume of divinity, of clarity, of equipoise, of harmony, of orderliness. अगर देव तत्व में आ गए तो हमारा जो कहते हैं ना सुगंध जो है, तो ये दैवी होगा। हाँ, द परफ्यूम ऑफ डिविनिटी, स्पष्टता होगी, समत्व में हम होंगे और हम अनुशासित होंगे। इफ यू हैव सीन दैट इन मी, इट इज देयर इन यू, व्हाई डोंट यू अलाउ दैट टू गेट मैनिफेस्टेड? अगर जो तुमने मुझ में देखा वही तुम में भी है, तुम क्यों नहीं अपना रूप दिखाते? हाँ, ये कृष्ण पूछते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डायलॉग इन द गीता। इवन इन द 18th चैप्टर, आफ्टर हैविंग एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, अगर आप 18वां अध्याय पढ़ो, 18वां अध्याय में भी सब कुछ सिखा के हो गया। आखिरी अध्याय में भी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कृष्ण सेज टू अर्जुना, बी एज यू वांट टू बी। आप जो बनना चाहते हो, आप जैसे रहना चाहते हो, आप रहो। ही शोज द पाथ, मार्ग वो दिखाते हैं, बट ही सेज वॉक ऑन इट एज फार एज यू वांट टू वॉक। देखो ये मार्ग है, ये मैंने आपको दिखाया है, आप जितना चल सको चलो। और कृष्ण जवाब देते, वॉक एज फार एज यू वांट टू वॉक। अर्जुना सेज आई विल डू एज यू आस्क मी टू डू। और अर्जुन कहते हैं, आप जो प्रभु आप जो बोलो वो मैं करूंगा। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, नो, डू डू एज यू हैव अंडरस्टूड। मैं जो बोलूं वो तुमने नहीं करना है, तुम्हें जो तुम्हारी प्रज्ञा तुम्हारी विवेक के हिसाब से तुम्हें जो समझा है वो तुम करो। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, डू व्हाट यू वांट टू डू। सब समझाने की मैंने कोशिश की है, अगर समझा है तो उस हिसाब से आपकी जिंदगी में आप परिवर्तन लाओगे। दैट इज हाउ द 18th चैप्टर एंड्स। तो ये शायद 18वां अध्याय का आखिरी श्लोक में कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन से, नहीं, चॉइस तो तुम्हारी है, तुमने जितना समझा है, तुम जो जान पाए हो, उस हिसाब से तुम करो। ब्यूटिफुल 3 और 4 वर्सेस बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुना। अर्जुन कहता है, नाउ माई डाउट्स आर डिस्पेल्ड, अब मेरी शंका सब दूर हो गई। आई हैव रिगेन्ड माई अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन नेचर, मैं ब्रह्म हूँ, ये मैं समझ गया हूँ। आई विल डू एज यू आस्क मी टू डू, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। और कृष्ण कहते हैं, आई डोंट आस्क एनीथिंग ऑफ यू, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं करने को कह रहा। आई हैव एक्सप्लेन्ड, मैंने बस समझा दिया है। इफ यू हैव अंडरस्टूड, हैव यू रिकलेक्टेड द एसेंस ऑफ योर नेचर, अगर तुम्हें समझा होगा तो तुम खुद को जानोगे, राइट? एंड अर्जुना सेज यस, कृष्ण पूछते हैं, क्या अब अपनी आत्मा का साक्षात्कार आपको हो रहा है? और अर्जुन कह रहे हैं हाँ। देन डू एज फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग, उस हिसाब से जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो। This sense of freedom, which is the breath of the Gita and the Upanishad, is something that has generated a tremendously deep love in my heart for these teachings of the Vedas and the Upanishads. Not because I'm born in India, not because they were verbalized here in India, but because of this emphasis on the inner freedom, this emphasis of contributing to the natural harmony as the universe through your action and behavior. This emphasis on equipoise, equanimity, equibalance is something marvelous, very rare to come across in the scriptures in the world. कोई ग्रंथ इतना फ्रीडम नहीं देता होगा जो फ्रीडम हमें वेद उपनिषद भगवत गीता देती है, जो कहते हैं कि तुम्हें जो समझा है, तुमने जो जाना है, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे विवेक के हिसाब से अपनी जिंदगी तुम व्यतीत करो। तो कहती है यही जो समभाव है, ये जो समस्थिति है भगवत गीता की, ये मुझे बहुत पसंद है। तो कृष्णा से कृष्ण कहते हैं, लेट द एरोगेंस ऑफ योर इंटेलेक्ट एंड ईगो विच कॉन्स्टेंटली वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम इट्स सेंटर टुवर्ड्स एग्रेशन, assertion, domination, etc. Let that arrogance of acquisitive and assertive activity of the ego be subdued by humility generated by this new awareness. हमारा अहंकार और हमारी बुद्धि और बुद्धि का अहंकार, ये दो चीजों पे हम सबसे अधिक विश्वास रखते हैं। हमारा अहंकार जैसे कहेगा ना वैसा हम करते हैं। तो अब कृष्ण कहते हैं, अब तुम सजगता में आए हो,
जब हम सजगता में आते हैं, हम विनम्र बन जाते हैं, और हमारी विनम्रता से ये जो हमारा ईगो है और हमारी बुद्धि पे हमारा जो अहंकार है, ये कम हो जाता है। दिस बिकम्स लेस, देन योर लाइफ विल बिकम अ यज्ञ। और इस सजगता से जब विनम्रता आएगी, तो जिंदगी को यज्ञ समझ के हम जी सकेंगे। देन वॉट एवर यू डू इज डन फॉर मी। कृष्णा कहते हैं, यज्ञ समझ के जब तुम जिंदगी हर चीज करने लगते हो, तो तुम जो भी कर रहे हो अपने अहंकार के लिए, अहम भाव के लिए नहीं, पर मेरे लिए कर रहे हो, ब्रह्म के लिए, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के लिए कर रहे हो। Now, let us understand what is meant by this doing for the divine, dedicating to the divine, and how does that arrogance of ego, which wants to assert through acquisition, how does that get subdued? What does this attitude of humility or surrender, of devotional dedication do to it? That is the point that we should try to see clearly. अहंकार को छोड़ देने का मतलब क्या होता है? विनम्र का मतलब क्या होता है? समर्पण में आने का मतलब क्या होता है? इस बात को हमें समझना है। अदरवाइज दीज वर्ड्स, अगर हम ये नहीं समझे, तो ये सिर्फ शब्द बन के रह जाएंगे। सरेंडर, समर्पण, डिवोशन, डेडिकेशन, भक्ति आर एप्ट टू बी मिसअंडरस्टूड एंड मिसइंटरप्रिटेड। फिर हम इसका गलत अर्थ समझेंगे और गलत तरह से इसको देखेंगे। दे माइट थिंक ऑफ द ईगो ऑफ स्लेवरी, ऑफ सबॉर्डिनेशन एक्सेट्रा। नहीं नहीं, देखो, सम का मतलब क्या होता है पता है? खुद को बहुत ग्रेट नहीं समझना, लेकिन खुद को कम भी नहीं समझना। जो है जैसे है, जितना मुझे समझ रहा है वो मेरा, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं। तो ये जो समभाव है ना, यहाँ पे अहंकार जब मिट जाता है, अहंकार जब न्यूट्रल में आ जाता है, तो समभाव हमारे के अंदर आता है। Words are liable to be misunderstood, especially words that come from the Sanskrit and which are trying to understand in English. Languages born in different cultures are the product of different ways of living, and we are trying to understand the scientific implications of those वर्ड। संस्कृत के शब्द है, इनको ठीक से समझने की जरूरत है। इंग्लिश भाषा में समझा शब्द कम पड़ते हैं, संस्कृत के शब्दों का अर्थ बताने में पर प्रयत्न करते हैं। लुक, वंस दैट अवेयरनेस दैट लाइफ इज डिवाइन, that the cosmos is filled with divine energy, unlimited, beginningless, and endless divine energy, having inexhaustible potential in the spite of millions of years of manifestation. Once that awareness comes, dawns upon you, what will it do to you? अगर हम जब हमारे ध्यान में ये आ जाता है, ये तो युगों युगों से चलता आया है, और ये जो ब्रह्म है, ये सर्वव्यापी है। कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे ये देव तत्व, ये ब्रह्म नहीं है। एक बार ये बात हमारे गले से उतर जाए, फिर हमारे में कौन सा परिवर्तन होगा? हमारा क्या, हम पहले की तरह तो डेफिनेटली नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा ईगो खत्म है। हम समझते हैं हम कुछ है ही नहीं, ये सर्वव्यापी विभू के सामने हम क्या है? हाँ, उसका साधन है ज्यादा से ज्यादा। तो जब ये ध्यान में आएगा कि उसका साधन है, तो हमें और विनम्रता होगी कि अरे, हमें उनकी कृपा महसूस होगी कि इन्होंने हमें सिलेक्ट किया, हम उनके माध्यम है व्यक्त होने के। और भी विनम्र हम बन जाएंगे। क्या होगा? देखो, एक बार अगर ये हम समझ गए कि ईगो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सर्वव्यापी, अनंत, अमर, ये जो ऑल दिस omniscient, omnipresent ब्रह्म, what am I in front of it, right? ये जब समझ में आएगा, तो then when you feed the body, clothe the body, bathe the body, sleep the body, because you are aware of that divine energy contained in matter, you have a respect and a reverence for life, for every expression of life in your body as well as outside of you. If that reverence for the body is there, then your attitude towards your physical behavior is bound to be changed. अब मैं मेरे शरीर को बहुत ही आदर पूर्वक इसके साथ व्यवहार करूंगी।
इसको कुछ भी खिलाना, कुछ भी पिलाना, कुछ भी पहनाना, कैसे भी रखना, ये अब मुझसे नहीं होगा। जब हर मेरे कण कण में कृष्णा है, हर मेरे कण कण में मेरे एवरी सेल ऑफ माय बॉडी इज फिल्ड विद द डिवाइन एनर्जी, when you realize that you are not going to fool around with your body anymore. Your body is no longer to be used the way you like, that is impulsively, instinctively, aggressively, indifferently. It is the body of the divine, it is an expression of the divine energy. देव तत्व का ये स्वरूप है। अब इसको कैसे भी हैंडल नहीं करेंगे। The Lord, the divine resides in the body without creating a fuss. The whole attitude, approach and tackling of the physical behavior goes through a transmutation. हम खुद को नए नजरिए से देखेंगे, हमारे ही शरीर को, हमारे ही मन को। हम दूसरों के शरीर को भी नए नजरिए से देखेंगे, उनके भी मन को नए नजरिए से देखेंगे। वो कैसे भी व्यवहार करे, हमको तो उनके अंदर का देव तत्व ही दिखेगा। अब उनका वो ऊपर ऊपर क्रोधित या जेलसी या जो भी बुरा बर्ताव, बुरे शब्द, वो हम पर कोई असर नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये तो सब ऊपर का है, ये अब इस पल में है, अगले पल में गायब हो जाएगा। उसको जो जो टेम्पररी है, जो क्षणिक है, उसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अंदर का जो है, जो परमानेंट है, हमारा सारा ध्यान उस पर रहेगा। द बिहेवियर इज रीओरिएंटेड एंड द एनर्जी पोटेंशियल इज एनहांस्ड. That is why the study of yoga can lead to longevity of the physical existence. अब अपने शरीर का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, बड़े प्यार से इसके साथ हम पेश आएंगे, हाँ, बड़े आदर पूर्वक इसका हम ख्याल करेंगे। फिर आप बताओ, अगर शरीर का बहुत अच्छा ध्यान रखा, मन का बहुत अच्छा ध्यान रखा, तो आयु कैसे नहीं बढ़ेगी, हम ज्यादा जी पाएंगे, राइट? I have come across yogis, met them and talked with them who had lived for more than 200 years physically. कह रही है मैं खुद ऐसे योगियों से मिली हूँ जो 200-200 साल जिनकी उम्र है। I took the trouble to go to the government office and get myself satisfied by seeing the date of their birth registered, because I would not take it on the word of their disciples. अगर कोई चेला कह देता है कि नहीं नहीं मेरे गुरु तो 200 साल के हैं, तो बोलती है मैं तो उनका, मैंने बहुत तकलीफ उठाकर उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उनका रजिस्ट्रेशन ढूंढ निकाला कि सच में क्या ये, जो भी तरह से, बट शी फाउंड आउट दैट दे रियली, सच में ये 200 साल है। So this longevity of the body is the result of the transmutation of those energies and transformation of the natural equilibrium. जब हमारे अंदर का समत्व एक अलग स्तर पे चला जाता है, जब हमारी ऊर्जाएं परिवर्तित हो जाती है, तो हम बहुत लंबा जी सकते हैं। The surrender to the divine, dedicating the physical to the divine, means being aware of the divine presence in every minute particle of matter, in animals, in birds, in trees, in water, in everything. It is reverence for life that generates a sense of sacredness or holiness. सब चीज पवित्र लगती है, सब चीज शुभ लगती है, तो हमारा सारा व्यवहार, हमारा चलना उठना बैठना बोलना, सब कुछ बिल्कुल उस तरह से बन जाता है। आगे के एक दो तीन चैप्टर में ब्रीफली बस थोड़ा सा स्किप कर दूंगी, एक चैप्टर नहीं, दो तीन पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ पे वो बस यही कहती है कि हम हमारी ऊर्जाओं का आदर नहीं करते, तो हम ईगो को हम नीचे नहीं लाते। और ये शब्द जो है सरेंडर, डेडिकेशन, डिवोशन, इसका हम बहुत अलग तरह से इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गुरु को समर्पित हो जाओ बोले, तो हम उस व्यक्ति को समर्पित होते। गुरु ये तत्व है, हर एक में वो होता है, तो उस तत्व को समर्पित नहीं होते। हम विषय पूजा नहीं करते, हम व्यक्ति पूजा करने लग जाते हैं। और यहाँ पे फिर वो व्यक्ति इंसान इंसान है, कभी तो वो कम ज्यादा होगा, फिर हम बोलेंगे अरे ये तो गुरु है, ये कैसे कम ज्यादा हो सकते हैं, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता है।
अब कृष्ण कहते हैं, अर्जुना सी इट वेरी क्लियरली दैट योर एवरी एक्शन, एवरी मूवमेंट शुड बी अ सिंबल ऑफ दैट न्यू अवेयरनेस, a dedication to the new awareness. Dedicate everything to me. Krishna is speaking there on the behalf of the Lord Ishvara. He is using his body as a symbol of that. That is how you will arrive at the supreme abode of consciousness. जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरी तरफ देखो, मेरे साथ रहो, तो मैं यानी कौन? पर ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्म का रूप जो उनका है वो अभी तो मनुष्य रूप में है, अवतार है, लेकिन वो है ब्रह्मा। तो the intelligence concealed in that consciousness is not meant to live on the material level with inertia, neither governed by it nor subdued by it. The energy of intelligence, divinity, Chaitanya, is not doomed to be a prisoner of the thought structure. Its abode is somewhere else, in the transcendental divinity, the sovereign supreme intelligence. So कृष्ण कहते हैं, अर्जुना व्हेन योर एक्शंस बिकम डेडिकेटेड टू मी, जब तुम खुद को मुझे समर्पित कर दोगे, द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, दैट इज टू से when they are filled with the awareness of my omnipotence, omniscience and omnipresence, जब तुम ये समझ जाओगे कि मैं ब्रह्म हूँ और तुम्हें इसकी पूरी सजगता आ जाएगी, then your actions will become divine. फिर आपकी हर हरकत ये दैवी ही होगी. As my actions are, and your consciousness will have reached its final abode, the ultimate abode of consciousness. फिर आपकी जो चित्त भूमि है ना, ये अब मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र से निकलकर निरुद्ध हो जाएगी, पराचित्त भूमि में तुम पहुंच जाओगे. We have seen in the 11th chapter the physical demonstration of yogic powers of Krishna for his darling friend and student Arjuna. The recognition and realization by Arjuna of that omniscience, omnipotent presence, and a very brief description of the transmutation caused by the realization of the divinity as cosmos. We have seen the existence of divinity through meditation within our body. तो पहले हमने देखा कि कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, अपनी सिद्धियां दिखाई, और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि कृष्ण हमारे अंदर जीते हैं. We have seen the body of silence in which the divine was concealing itself in the 10th chapter. और कृष्णा हमारे अंदर है, तो हम इस कृष्णा को कैसे छू सकते हैं? बस एक ही तरह है, और वो है मौन में जाके, ध्यान में जाके. We see the whole cosmos as the flesh and blood of the divine. It is called as cosmic yoga, Vishwarupa yoga. It is the yoga of seeing God in the manifest cosmos as you have seen it in the unmanifest, unindividuated silence. तो ये मनुष्य कृष्ण ने रूप लिया है, अवतार लिया है, इसमें हमें ब्रह्मांड का रूप दिखा है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस दिखा है, और जैसे कि हमने मौन में ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस देखा था, उसी तरह we have worked hard from the 9th chapter to the 10th, and now we conclude the 11th chapter. Raj Yoga, the 9th chapter, was itself a very complex one. Vibhuti Yoga, 10th chapter, was comparatively easy but difficult to grasp because of the metaphysical aspect of Indian philosophy. And the 11th chapter, Vishwarupa Darshan Yoga, every word of it was very complex. कहने की बात यह है, 9वां 10वां 11वां अध्याय बड़े ध्यान से चिंतन मनन, एक एक श्लोक बिल्कुल ध्यान से अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि कठिन है. यहाँ पे 11वां अध्याय खत्म किया, 11th चैप्टर, लेट मी से शी फिनिशेस, और हम अब फाइनल चैप्टर की तरफ आ गए, और वो है 12th चैप्टर. विमला ठाकर ने सिर्फ 12 चैप्टर लिखे हैं, आगे का नहीं लिखा. किसी को कुछ कहना है विश्व रूप दर्शन के बारे में? आप कुछ कहना चाहते हैं या हम आगे बढ़े? जान्हवी, स्वाती, ऑल गुड? पुढे वाचू? हो चालेल. काल मी नव्हते त्यामुळे. अच्छा, काल तू नव्हतीस, बरं ठीक है. चलो, योगा ऑफ डिवोशन, भक्ति योग, 12वां अध्याय है भक्ति योग. बहुत ऐसे जीवन में प्रॉब्लम्स जब आते हैं, तब कहते हैं कि 12वां अध्याय का अभ्यास करो. तब दुख जब ज्यादा होता है, तब कहते हैं कि 12वां अध्याय का अभ्यास करो. लेकिन
ये भगवत गीता का जो भी कुछ विमला जी समझा रही है, मुझे लगता है हर एक अध्याय का अभ्यास करना जरूरी है। हर अध्याय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई भी एक नजरिए से देख के काम नहीं होगा, चारों तरफ से समझने की जरूरत है। All right, yoga of devotion, bhakti yoga. Arjuna was frightened when he witnessed in the physical frame of Krishna's body the dance of existence, people getting born, getting killed, fighting each other, the interaction between good and evil. He was frightened and he was eager to see Sri Krishna back as an individual in the so-called normal human form. This whole episode signifies the terror, the fright stimulated in the mind of the inquirer when suddenly, in a flash of awareness, the physical frame of his body, matter in his body, mind operating in that matter, have no independence of their own. There is a higher power than the physical and the mental, which does not have a visible, tangible, knowable form. तो कृष्ण अर्जुन देखो, हमने देखा कि कृष्ण का विश्व रूप देखकर जहाँ पे लोग मारते हैं एक दूसरे को, अच्छाई बुराई सब कुछ उसके अंदर उसको दिखती है, डर जाता है। और ये जो डर है, ये हम सबके अ, दिमाग में होता है। हम दुख का अंत करना चाहते हैं, हम जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है हम इसको खत्म करना चाहते हैं, हम ये सब करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग मार्ग पर भी चलते हैं। लेकिन जब वो मार्ग पे चलते हुए मेडिटेशन में, धारणा ध्यान ध्यान के अवस्था में जब वो पॉइंट आता है कि हमारा मन और शरीर छूट जाता है, हाँ, श्वास ना के बराबर, शरीर शून्य, मन शून्य, मनातीत शरीरातीत हो जाते, तब हम डर जाते हैं। बिकॉज जाना पहचाना टेढ़ा है पर मेरा है, हाँ, तो वो टेढ़ा है चलेगा लेकिन पहचान का तो है। ये तो बिल्कुल पहचान की नई अवस्था, ये अवस्था बिल्कुल नई होती है। और ये नई अवस्था है जहाँ पे मुझे, मेरे मन शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई और पावर जो है, ये पावर मुझको चला रहा है, तो डर जाते हैं। द फिजिकल बॉडी हैज अ फॉर्म, it can be touched, it can be seen, it can be molded, it can be handled. And also the mental body, constituted of conditionings, can be perceived because the mind is constantly moving, and the movement of the mind as thought, as feeling, as sentiment can be observed. The way to handle the mental body, to mold it, to control it, to regulate it, it's qualitatively different from the mode of handling the physical body. देखो, शरीर को तो हम बदल सकते हैं, इसको मोल्ड कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, शरीर में बदलाव ला सकते हैं, हमारे वजन में, हमारी ऊंचाई में, हमारा जो भी स्नायुओं की ताण स्थिति में, हमारे पचन में, हमारे श्वसन में, हम ये सारी बदलाव शारीरिक स्तर पे ला सकते हैं। मानसिक स्तर पे भी हम बदलाव ला सकते हैं उसमें भी हम नियंत्रण ला सकते हैं। लेकिन शरीर को हैंडल करने का तरीका अलग है और मन को हैंडल करने का तरीका अलग है। शरीर को हम बोलेंगे तो शरीर जो बोलेंगे वो करता है, शरीर कभी विरोध नहीं करता, अगर हम उसको बोलेंगे तो वो बिल्कुल सुनता है। मन है जो मानता नहीं, है ना, दिल है कि मानता नहीं। तो यहाँ पे मन को अगर हमें हैंडल करना है तो बहुत अलग तरह से करना होगा। But when the inquirer, through his alertness and sensitive receptivity, becomes aware of the energy of intelligence, which has the body of silence, of emptiness, which is unknowable, untouchable, unperceivable, and yet it is there, when he sees the light of that intelligence permeating and pervading every part of his body, every organ of his body, every drop of blood, every marrow in the bone, then he becomes frightened, because then he realizes that he cannot plead any excuse in the name of the physical body or the mind for living in the impure, imbalanced, disorderly, unscientific way, and that creates fear. एक बार जब ये ध्यान में आ जाता है, जब हम इस अभ्यास में लग जाते हैं, एक पॉइंट आता है जब हम इतने सेंसिटिव बन जाते हैं और ये चैतन्य, ये होने का एहसास हमें हो जाता है,
अब जब मेरे कण कण में, पूरे शरीर में, मेरे मन के हर हिस्से में अगर चैतन्य है, चैतन्य यानी क्या? लाइट, बराबर है, तेज, प्रकाश। हाँ, जब अगर लाइट है तो मैं छुपू कहाँ? ओके। ये मुझे, ये जब ये पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत यू नो, जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं और मैं उनको कोई भी उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव करने, नहीं लेकिन मेरा शुगर ना बढ़ जाता है, नहीं लेकिन मेरा शुगर ना कम हो जाता है, नहीं लेकिन मैं इतना अगर चलूँ ना तो ये प्रॉब्लम होता है, नहीं मैं अगर योगा में जाती हूँ तो वो, मतलब जो बहाने बनते हैं, बदलाव न लाने के बहाने, हाँ, असीमित बहाने, अब छुपने के लिए कोई बहाना काम में नहीं आएगा। जब ये समझ जाते हैं कि कण कण में, मन के हर हिस्से में, शरीर के पेशी पेशी में, हर जगह पर चैतन्य है, तो मैं छुपू कहाँ? वो जो इम्बैलेंस में रहने की आदत, वो जब जैसे तैसे रहने की आदत जो लग गई है, अब मेरे मेरे पास कोई बहाना नहीं है जैसे तैसे रहने के लिए। राइट, और इसके वजह से हम डर जाते हैं। हमारे ध्यान में भी नहीं आता कि हम क्यों डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं कि जो चीजें हमें आदत से पहचानी, बुरी बट पहचानी, अच्छी बुरी बट पहचानी, वो पहचानी चीज अब हमारी छूट जाएगी। वी द ह्यूमन बीइंग शेयर द अर्थ नेचर इनर्शिया। अब देखो, बहुत सुंदर विषय की तरफ हम आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब हम त्रिगुण की तरफ आ रहे हैं, सत्व रज तम के 3-4 पेजेस है, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। वी द ह्यूमन बीइंग शेयर द अर्थ नेचर इनर्शिया। पृथ्वी तत्व जो है अचल है। हाँ, पृथ्वी तत्व चल नहीं है, वो चल के कहीं जा आ नहीं सकती। ठीक है, तो वो स्थिर है, स्थित है, तो उसको कहते हैं तमस। इनर्शिया इज तमस। तो पृथ्वी जो है, इसमें त्रिगुण में से सबसे अधिक गुण तामसिक का है। द अर्थ इज डोमिनेटेड बाय तमस गुण। रज गुण इज द एनर्जी ऑफ मूवमेंट एंड एक्टिविटी, एंड सत्व गुण इज द एनर्जी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। दे आर बोथ देयर इन द अर्थ इन मैटर, बट दे आर सबड्यूड। अब देखो, तामसिक गुण पृथ्वी में सबसे अधिक है। रजोगुण जो है, जिसके वजह वजह से गति हमें मिलती है, और सत्व गुण है जिससे हमें स्पष्टता और समझदारी मिलती है। ये दोनों चीजें है पृथ्वी में, लेकिन वो सबड्यूड है, हाँ, कम है, कम या शांत है वो। तमस इज द डायमेंशन विच डोमिनेट्स इन अवर लाइफ। और जिस तरह पृथ्वी तामसिक है ना, हमारा शरीर में पृथ्वी तत्व कौन सा है? मांस है, मांसपेशियां है, हड्डियां है। तो अधिकतर ये जो तामसिक गुण है, ये हमारे जीवन में सबसे अधिक होता है। वी हैव इन अस दैट इनर्शिया विच कॉजेज लेजीनेस, sluggishness, postponement of action, postponement of decision, clumsiness. When we give in to that laziness, sluggishness, postponement, procrastination, irregularities, unpunctuality, etc., in our daily living, we plead in the name of the body. My body requires this and my body requires that. ये बन गया तमस। नहीं नहीं, मुझे तो ये टाइम पे ये चीज चाहिए ही चाहिए। नहीं नहीं, अगर मैंने ये, मुझे ये नहीं मिला ना खाने को, या मुझे ये नहीं मिला करने को, तो मुझे चलेगा ही नहीं। मैंने ये टाइम पे उठना ही चाहिए, मैंने वो टाइम पे सोना ही। हर चीज के बारे में हर एक जन हम कहते हैं मेरा ये है, पर वो जो भी कुछ है कि नहीं नहीं, मैं अगर जल्दी उठ गई ना तो मेरा दिन खराब हो जाता है, या मेरे को तो 8 बजे से पहले मैं उठ ही नहीं सकती, या मैं 4 बजे तो उठना ही है, नहीं उठूंगी तो मेरा दिन खराब हो जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो भी आलस्य है, जो भी अवयति है, जो पतंजलि ने ये सारे अंतराय में कवर किया हुआ है, ये सारी चीजें है ना, ये तामसिक अधिकतर हमारे में तमस होने के वजह से है। द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड द परसेप्शन दैट द एनर्जी ऑफ इंटेलिजेंस permeates your body makes you feel uncomfortable, because the whole defensive mechanism built up in the name of poor body crumples, collapses like a house of cards that children build to play। तो हमने जो बहानों पे, जो एक्सक्यूजेस पे हमारी जिंदगी हमने खड़ी की है, ये सब
टूट जाती है, बिखर जाती है। ये जब चैतन्य जागृत होता है, जब विवेक ख्याति होती है, जब प्रज्ञा जागृत होती है ना, तो सारे बहाने हमारे वो बिखर जाते हैं। अवर लाइफ इज फुल ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म्स दैट वी बिल्ड अप इन द नेम ऑफ अवर माइंड। नहीं नहीं, मेरे शरीर को तो इस चीज की आदत है, नहीं नहीं मेरे शरीर को तो नहीं, फिर मेरा पचन खराब हो जाएगा, मेरा श्वसन खराब हो जाएगा। जो बहाने शारीरिक लेवल पे देते हैं, वैसे ही बहाने हम मानसिक स्तर पे भी देते हैं। मन ना बहुत सारे, आपने फोर्ट देखा होगा ना, क्या किल्ला, किल्ल्याला हिंदीत काय म्हणू, व्हॉट इज इट कॉल्ड? गडी, सडनली गडी, किल्ला, किल्ला म्हणते मी, गडी. नाही काय, नाही नाही, फोर्ट, फोर्ट ग. फोर्टलाच गढी म्हणतात, गढी. गड 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 म्हणतात, गड. हा गड, पण गड. ते मराठी शब्द आहे गड. हो, पण त्याला गढी म्हटलं की गढ़ी हिंदी. मंडी, ओके, ऑल राइट। आई थिंक इतना डिस्कशन में आपके ध्यान में आ गया होगा, मैं फोर्ट के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे। वो, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि देखो, फोर्ट के अंदर जहाँ राजा रहता है, उसका जो भी कुछ होता है, तो वो बाहर से दुश्मन का अटैक ना हो, इसके लिए बहुत सारे दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारी खड़े की जाती है। वैसे ही उसको कहते हैं डिफेंस। हाँ, डिफेंस सिस्टम एक डेव्हलप किया जाता है। खंदक आम्हा- म्हणतात, काय म्हणतात? खंदक खंदक, बर. किंवा तट पण म्हणता येईल ना, ताई. किला, किला. जाऊ द्या, जाऊ द्या, जाऊ द्या. म्हणायचं मला हे आहे कि मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमारा मन जो है ना, ये बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज करता है ताकि हमें तकलीफ ना हो, ताकि हमें तकलीफ ना हो, इसलिए मन में हम बहुत सारी बातें बना के रखते हैं। फिर वो हम बात, मतलब अगर हमने बोल दी ना, तो हमें उस बात की तकलीफ नहीं होगी। तो मन सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, मन अपने बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे बिलीव्स ऐसे ये बना के रखता है। Our life is full of defense mechanism that we build up in the name of our mind. Mind is a subtler matter, body is gross matter. All right, शरीर स्थूल है, मन भी प्रकृति ही है। शरीर प्रकृति है तो मन भी प्रकृति है, लेकिन शरीर से मन सूक्ष्म है। एंड इट कंटेन्स द सटलर मैटर कॉल्ड माइंड। माइंड इज डोमिनेटेड बाय रजगुण। देखो, शरीर में तमगुण सबसे अधिक था और मन में रजगुण सबसे अधिक है। एक सेकंड के लिए भी क्या आपका मन शांत बैठता है? नहीं, मेरा तो नहीं बैठता है ना, किसका भी नहीं बैठता। माइंड इज वेरी एक्टिव, तो रजोगुणों से मन भरा हुआ है। एनर्जी ऑफ मूवमेंट, मोशन एंड एक्टिविटी। द सटल बॉडी कॉल्ड माइंड इज एवर रेस्टलेस बिकॉज ऑफ रजगुण, एंड इट फाइंड्स एक्सक्यूजेस फॉर दैट इंसिस्टेंट constant movement in the name of likes, dislikes, preference, prejudices, value structures, ideals, ideology। शरीर के बारे में हम बहाने बनाते हैं। मन, शरीर तामसिक है, मन राजसिक है, उसके लिए भी हम बहाने बनाते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो ये सोचना है, नहीं नहीं, मुझे मेरे जॉब के बारे में बहुत टेंशन होता है, नहीं मुझे ये घर चलाना है, मुझे अभ्यास करना है, ये करना है, वो करना है। और मन को हम गतिशील रखते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट में, गति में हम रखते हैं। मुझे ये पसंद है, वो पसंद नहीं, ये सही है, वो गलत है, वगैरह वगैरह। We build up defenses for the unscientific, even the disorderly movement of the mind, its peculiarities, its idiosyncrasies, they are all defended by us, at least in our minds to ourselves। और हमारे ही मन में हम मन को, अगर हमने कोई एक्शन रिएक्शन कर दिया, अगर हमारे मन से निकली हुई बात मुंह से, मन में आई हुई बात मुंह से हमने निकाल दी, तो हम उसको भी कवर अप करने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी ये एडमिट नहीं करना चाहते कि शरीर और मन दोनों में अशुद्धियां है, दोनों में गैर व्यवहार है। और ये सब किस चीज के नाम पे? तो नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के नाम पे। So they are all defended by us, at least in our minds to ourselves।
When it is realized that mind is not the ultimate energy for living harmoniously, for sharing the harmony of the cosmos around me, that it is not the source of intelligence, of clarity, of understanding, then the possibility of living in an imbalanced, impure, disharmonious, disorderly way is gone. And that terrifies a human being. अब हम जैसे तैसे मन को चला नहीं, एक बार चैतन्य को हम जान जाते हैं, एक बार ब्रह्म का अस्तित्व, पर ब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व हम मान लेते हैं, उसके बाद ये शरीर और मन हम जैसे तैसे बिल्कुल चला नहीं सकेंगे। पहले जैसे हम चलाते थे वैसे चला नहीं सकेंगे, इस बात से हम डर जाते हैं। ह्यूमन बीइंग शेयर द रज गुण विथ एनिमल्स. It is the dominant nature of animals. Animals are governed by instincts and biological inclinations. The pressure provoked by those instincts, traits, inclinations are ruled by hunger, thirst, pressurized compulsion for procreation, and they give in to that. Human beings like to do that also, to be governed by hunger, thirst, sex. प्राणी रज है। रज किस अर्थ से? अब देखो, बाहर का शारीर, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट फिजिकल मूवमेंट. रज इज रिस्पॉन्सिबल फिजिकल मूवमेंट, बट देर आर मूवमेंट्स विद इन द बॉडी. The movement of hunger, the movement of thirst, the movement for sleep and sex, all this is there within the body. And when that movement happens, we don't know how to control it. So we give in. जैसे अब आप और मैं खाते पीते घर के सब लोग, रोटी कपड़ा मकान बहुत अच्छी तरह से, प्लेंटी, हम भरभराटी में जीते हैं. थोड़ी भी भूख लगी ना, हम तुरंत खा लेंगे. हम इसलिए फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, 8 घंटे का गैप रखो, वगैरह वगैरह हमको सिखाना पड़ता है, क्योंकि हम थोड़ी भूख लगी है, चलो कुछ भूख मिटा देते हैं, प्यास लगी है थोड़ा, बट बार बार पीना पानी, बार बार खाना, क्या इस बात की जरूरत है? जब विवेक जागृत होता है तो अपने आप हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लगते हैं. अब छुपने की कोई जगह नहीं है, राइट? तो प्राणियों में ये होता है, हमारे में भी वो रजगुण है जो हमें वो करवाने पे हमारी जो शरीर की मन की इच्छाएं है, इसकी पूर्ति में हम लग जाते हैं. Now the impulses in the animal body have their own velocity, their own momentum. It is a universal momentum of the human animal. We are animals. As we have the earth nature as tamoguna, we also share the rajaguna of the animal kingdom, and we like the animal in us. तो प्राणियों में जो रजोगुण है वो हम भी तो प्राणी है, मनुष्य प्राणी, और वो प्राणी का रजोगुण हमारे में भी है, राइट? और हम वी लाइक द एनिमल इन अस, और हमारे अंदर का प्राणी हमारा बहुत प्रिय है, राइट? एनिमल किल्स नॉट फॉर हर्टिंग बट टू सर्वाइव. प्राणी क्यों मारते हैं? छीनने की कोशिश करते हैं, या लड़ाई करते हैं, या मारते, दूसरे प्राणियों को मारते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए. बट वी लाइक टू हर्ट विथ वर्ड्स, विथ ग्लैंसेस. अब हमारे अंदर भूख नहीं है, फिर भी हम हिंसा करते हैं. प्राणी हिंसा करते हैं भूख मिटाने के लिए, हम तो नजरों से वार करते हैं, शब्दों के वार करते हैं. कौन सी भूख मिटाना चाहते हो, नजर से और शब्दों से? सोचो. We may not kill, but we kill with words and glances through indifference and domination. हम दूसरों पे पावर लेना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, तो हम हिंसा करते हैं. This Rajaguna dominated behavior also has no scope after the dawn of clarity of intelligence. एक बार तुम्हारे चैतन्य जागृत हो जाए, एक बार विवेक जागृत हो जाए, प्रज्ञा आ जाए, तो हम अब ये नहीं कर सकेंगे कि नजरों से वार किया, हिंसा किया. कोई लेवल पे हम हिंसक नहीं बन सकते अब. Justification for imbalances, impurities, waywardness, disorder, disharmony, everything qualification. अब हमारे पास everything collapses. अब हमारे पास कोई बहाने नहीं चलेंगे. And the perception of that power of intelligence, energy of intelligence, releases the sattva guna in you. और जब वो कोई बहाने नहीं चलेंगे,
तो शरीर में हम शुद्धता रखने की कोशिश करते हैं, मन को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, इसको कहेंगे सत्व गुण। रजतम गुणों से हम भरे पड़े हैं, लेकिन सत्व गुण हमारा सुप्त है, सोया हुआ है। जब विवेक आता है, प्रज्ञा आती है, तो सत्व हमारा जागृत होता है। Some people like to discontinue their ascent towards the divine at this point of the liberation of Sattva Guna. It has relative clarity, which has relative unattachment, which has a limited capacity for freedom because it still has the capacity of choice in it. It has still the capacity of choice in it. With the liberation of the Sattva Guna in our life, we feel that we can control Raja and Tama. We can control the mind through discipline, codes of conduct, surrendering to some ideology, conforming to certain patterns by creating parallel mechanistic movements of tamas and rajas in our being, by creating mechanistic movement of matter, tamas in our body, because matter is governed by certain laws and moves in the framework of birth, growth, decay and death. थोड़ा सा ये पढ़ लो, फिर एक साथ समझाती हूँ. And there is also a mechanical movement of Rajaguna, which is constantly moving, provoking, imagining, building up aims, objectives, and goals for that mental movement. So, to those with parallel movement, a third parallel, relatively mechanistic movement is created by the liberated Sattva, that is relative limited clarity and freedom of choice. It is convenient to create such a parallel mechanistic repetitive movement in the name of Bhakti Yoga, in the name of Hatha Yoga. देखो क्या होता है ना, जब सत्व में हम आते हैं तो अब हम में समझदारी आ गई है, तो हमें लगने लगता है कि अब हम हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे कर्मों पे हम कंट्रोल रख सकते हैं। विवेक जागृत हो गया है, अब हम सही करेंगे, अब हम सब ठीक करेंगे। बहुत लोगों का आध्यात्मिक प्रवास इधर खत्म होता है, क्योंकि उनको लगता है अब विवेक में आ गए ना, बस ये इतना जिंदगी अच्छी तरह से जीने के लिए इतना काफी है। यहाँ पे उनका जो ये है वो आगे का अभ्यास वो रोक देते हैं। तो ये भक्ति योग या हठ योग से होता है। लेकिन अगर तुम राजयोग मार्ग पे चलने लगे, हठ योग उतना लेवल पे आ गए, हैप्पी। भक्ति योग उतना लेवल पे आ गए, हैप्पी। लेकिन राजयोग इज द योगा ऑफ मेडिटेशन, राइट? राजयोग इज द योगा ऑफ साइलेंस एंड ध्यान। याद है ना? तो राजयोग में दो चीजें होती है, एक है मौन और दूसरा है ध्यान। राजयोग डज नॉट लीव यू फ्री टू डू दैट। अगर राजयोग मार्ग पे हो तो तुम्हें मुक्ति नहीं, तुम्हें वो अभी चॉइस नहीं है कि मैं मेरा अभ्यास यहाँ पे रोक दूं और इतना काफी है, इसका चॉइस नहीं है। दैट इज वाई फ्यू पीपल लाइक टू स्टडी राज योगा। दे आर सेटिस्फाइड विद द वेरियस डिसिप्लिन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, एंड दे लाइक टू स्टॉप देयर. Raj Yoga leaves you uncomfortable because you are not building up any parallel, repetitive, or mechanistic automated movement on the intellectual plane with the help of thoughts and ideas. It transcends even the Sattva Guna. Raj Yoga is transcending not only Tamas and Rajas but also transcending Sattva. राज योग में सिर्फ तम और रज को नियंत्रण में लाना काफी नहीं है, तम और रज को छोड़ना काफी नहीं है, सत्व को भी छोड़ना पड़ेगा। तो सत्व गुण के भी उस पार हमें जाना होगा, और इसलिए बहुत लोग इस मार्ग पर नहीं आते क्योंकि ये मुश्किल है। That was the challenge before Arjuna when he perceived the whole existence in the body of Krishna, realizing that in his own body the same principle was at work and that he had to surrender to that Ishvara, that higher intelligence residing in his own body. The realization that the physical and the mental and the intellectual has to be dedicated to that which transcends these three, that is uncomfortable. अब तीनों चीजें छोड़नी होगी, शारीरिक, मन, बुद्धि, और ये तीनों सत्व रज तम के उस पार जाना होगा। इस विचार से ही अर्जुन बेचैन हो गए, हम भी बेचैन हो जाते हैं। Because there you see that you are not controlling matter, you are not controlling the mind,
you realize that Purusha, ईश्वर, the supreme divine is doing it. मुझे तो अभी तक लगता था सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, अब समझ में आया मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, जो भी हो रहा है खुद से हो रहा है, ईश्वर कर रहा है। हाँ ना, हम करता हरि ही करता। ये पॉइंट तक जब पहुंच जाते हैं, यू realize that Purusha, Ishvara is doing it. You have only to be alert, awake and receptive for that light to control your life. तो मेरे जीवन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे आज तक लग रहा था कि मैं ही मेरे लाइफ, आई एम द रूलर ऑफ माई लाइफ एंड आई एम द कंडक्टर ऑफ माई लाइफ, एंड देन नाउ आई रियलाइज आई एम नॉट द ड्राइवर ऑफ माई लाइफ। मेरी गाड़ी तो कोई और चला रहा है। तो फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो अब मुझे सिर्फ सजगता रखना और स्वीकार में रहना। तो सजगता रखना, अलर्ट, अवेक एंड रिसेप्टिव टू द लाइट। हाँ, ये हम कर सकते हैं। नॉट दैट यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ, बट दैट द सुप्रीम, द सोवरेन डिविनिटी और द प्राइमल क्रिएटिविटी इज गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ योर होल लाइफ. This message of dedicating and devoting the physical, the mental, the intellectual to the transcendental supreme principle of Ishvara, principle of divinity, that is not very much relished by the mind. पूरा समर्पण, ये ईश्वर को शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ समर्पित कर देना है। जब ये ध्यान में आता है तो मन हमारा बहुत नाराज हो जाता है, बोलता है यार आज तक मेरी सत्ता चल रही थी, ये क्या हो गया, राइट? सो कृष्ण सेज, ईश्वर द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन रिसाइड्स इन एवरी ह्यूमन हार्ट। इस पॉइंट पे कृष्ण कहते हैं वो जो ईश्वर है हर एक के हृदय में रहता है। आई एम द सीड ऑफ ऑल क्रिएशन, सारी निर्मिति का मैं बीज हूँ। विदाउट मी मूवेबल एंड इमूवेबल मैटर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मेरे बगैर सजीव निर्जीव कुछ भी चीज रह नहीं सकती। आई एम द कंटेंट ऑफ क्रिएशन, जो भी बनता है वो भी मैं हूँ। आई एम टाइम, मैं समय हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कल्मिनेशन इन व्हाट वी कॉल, जन्म भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ। क्रिएशन इज माई ब्रेथ, और जो निर्मिति है ये मेरी सांसें है। एंड डिसइंटीग्रेशन, कल्मिनेशन इनटू द इवेंट ऑफ डेथ इज ऑल्सो माई ब्रेथ। मैं सांस लेता हूँ, जन्म होता है, सांस छोड़ता हूँ, मृत्यु आ जाती है। व्हेन कृष्ण सेज दैट, अर्जुना बिगिंस टू ट्रेम्बल। और ये जब कृष्ण कहते हैं तो अर्जुन कांपने लगते हैं। श्री कृष्ण एक्सप्लेन्स टू अर्जुना दैट बर्थ इज द बिगिनिंग ऑफ डेथ। और इस पॉइंट पे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जन्म यानी मृत्यु की शुरुआत, है ना? बिल्कुल। सो इन द सीड ऑफ बर्थ इज कंसर्न्ड द इवेंट ऑफ डेथ। हाँ, कार्य कारण भाव हम कहते हैं ना, तो बस जन्म लिया, कारण मिल गया, जाने वाला कहाँ पे है, उसका फल क्या है? मृत्यु। The movement of creation becoming manifest out of the womb of the unmanifest is what you call as time. तो समय क्या है? ये जो गति है ना, जहाँ पे कुछ नहीं था अब वहां पे कुछ तो भी है, तो वो जो गति है इसको समय कहते हैं। There is no other time but the unmanifest becoming manifest. समय और कुछ नहीं है, समय वो है जो नहीं था अब है, उसको समय कहते हैं। दैट मूवमेंट, वो गति, क्रिएट्स एन आइडिया ऑफ टाइम। वो गति के वजह से, कल तो नहीं था यार, आज है, अब कल था, आज नहीं है। तो जो था और नहीं है इसके बीच में का जो भी है ना, उसको हम टाइम कहते हैं। वो जो भी समय होने दो, तो उसको हम टाइम कहते हैं। द अनमैनिफेस्ट बिकम्स द मैनिफेस्ट, द सीड बिकम्स द स्प्राउट, अ स्प्राउट बिकम्स अ सैपलिंग ग्रोथ्स इनटू अ ट्री। ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस। हम भी जन्म लेते हैं, फिर चलने फिरने लगते हैं, युवा में आते हैं, फिर प्रौढ़ बनते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, और फिर खेल खत्म। तो इसको कहते हैं ग्रोथ। So, and when you watch the movement of growth, you impose the idea of time upon it, the idea of continuity upon it. तो हमें लगता है कल तो इतना था, अब इतना हुआ, अब और हुआ, तो हमें लगता है समय बीतने का एहसास हमें होता है और हमने टाइम क्रिएट किया।
बिकॉज वो जो गति है ना, वो जो बदलाव है, उसकी जो गति है उसको हम समय समझते हैं. बिकॉज ह्यूमन बींग्स डू नॉट सी दैट देयर सेंसेस, that with their senses, that every growth is an autonomous event. They have an idea about time as if there is a continuity in time. हमें लगता है कि चीजें कंटिन्यूस है, अब आई, अब थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा. ये योग सूत्र में ना बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, मैं वही आपको बता देती हूँ. एक्चुअली हर पल, हर क्षण एक पूर्ण समय है. ओके, इसको हम कहेंगे वन मोमेंट. क्षण को क्या कहते हैं? MOMENT, मोमेंट. ओके, ये पूर्ण है, इट्स कंप्लीट. देन द सेकेंड मोमेंट, दैट इज ऑल्सो कंप्लीट. देन द थर्ड मोमेंट, दैट इज ऑल्सो कंप्लीट. अगर हम फ्रेम टू फ्रेम, मोमेंट टू मोमेंट अगर हम जाएंगे तो समय नहीं है, देयर इज नो टाइम. Because this moment is everything, next moment is everything, next moment is everything. तो कहाँ पे टाइम है? Right? So there is no time. But when you see this moment and this moment, and then you see the movement between those two moments, the movement between two moments, time is created. येतंय लक्षात? हा, जान्हवी योगसूत्रामध्ये ऐकलेलं आहे, राईट? इज इट क्लियर? या. So so the because human beings do not see their with their senses, the very growth is an autonomous event. पूर्ण क्षण ऑटोनॉमस इवेंट, दूसरा क्षण ऑटोनॉमस इवेंट. पण वो पूर्ण हमें दिखता नहीं है. हम उसका ऊपर ऊपर का हिस्सा देखते हैं, फिर दूसरा ऊपर ऊपर का हिस्सा, फिर इस हिस्से को इस हिस्से के साथ जोड़ते हैं. तो ये जो दो मोमेंट थे, इसको जोड़ दिया, मूवमेंट बन गया, समय क्रिएट हो गया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कनेक्ट हो गया, राइट? सो they have an idea about time as if there is a continuity in time. The physicists have realized, however, that what you call the continuity of time is not a continuity. What you call every moment is an emanation of the timelessness. समय नाम की चीज, इसलिए कहते हैं ना, टाइम इज एन इल्यूजन. समय एक भ्रम है, समय होता ही नहीं है. द मोमेंट इज द टाइमलेस इमेनेशन ऑफ टाइमलेसनेस. कोई समय नहीं होता. In the same way, what you call the seed disintegrates in order to become a sprout. अब देखो, एक बीज है, वो बीज तो पूर्ण है, लेकिन वो बीज को फूटना पड़ता है, टूटना पड़ता है, अगर उसमें से अंकुर निकलना है तो, राइट? द स्प्राउट डिसइंटीग्रेट्स टू टेक द फॉर्म ऑफ अ सैम्पलिंग. अब वो अंकुर में से पत्ते, टहनियां, ये निकलना है, तो वो अंकुर वो फूट जाता है. This disintegration accompanies the movement of growth, and when the growth culminates into a full tree, there is a stabilization. The seed has established itself in the form of a tree. वो जो बीज था आज वृक्ष बनके स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है. The seed of a human being has established itself in a full grown adult body. It has crystallized the growth. It has stabilized. You know, in order to get established, you need to get stabilized. In the adult human being, the growth has stabilized. It has also crystallized. And in that crystallization, in that stabilization is the speed of disintegration. हम भी तो बड़े हुए और अब हम अडल्ट हो गए हैं, गृहस्थाश्रम में आ गए हैं, स्थिर हो गए हैं. लेकिन उसी स्थिरता में तो अंत का बीज छुपा हुआ है, जो खत्म होगा एक न एक दिन. Because after middle age, the process of disintegration, disorder, disharmony begins to manifest in the body. फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद औरतों में, मर्दों में भी, मेनोपॉज सब में आता है, राइट? हॉर्मोन्स बदल जाते हैं, जो भी पहले था वो सब बिखरने लगता है, और सारी चीजें अब क्या कहते हैं, पतन की शुरुआत हो जाती है, जो तुम्हें तुम्हारे अंत तक. और वो पतन ना होने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, राइट? और जो करना भी चाहिए. देन यू रिक्वायर मेडिटेशन. अब जब हम बिखरने लगते हैं तो हम कहाँ पे आते हैं?
हम योगा क्लास में आते हैं ओके। और यहाँ से मेडिटेशन की शुरुआत, मेडिसिन की शुरुआत, ट्रीटमेंट की शुरुआत। यू रिक्वायर ऑल दिस टू हेल्प ऑर्डर, हार्मनी एंड इक्विलिब्रियम इन द बॉडी, बट द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन हैज ऑलरेडी बिगिन। लेकिन अब बिखरना तो शुरुआत हो गई है। तुम ध्यान, औषध उपचार, इससे तुम रोकने की उसे कोशिश करते हो, लेकिन ये बिखरना शुरू हो गया है। In the very moment of stabilization, crystallization, or the full blossoming of the growth, you can see the seed of disintegration, a new disorder, a new disharmony, culminating in what you call as death. तो अब आपको लगता है चलो अब सब लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कैरी कर ली, अब हम स्टेडी हो गए, बस उसी समय बिखरना शुरू हो जाता है। Then in order to preserve the equilibrium and harmony in the body, you take medicine. और ये बिखरना रोकने के लिए हम औषध उपचार लेते हैं। बट देन द बॉडी ग्रोज ओल्ड, लेकिन कुछ समय बाद ये वृद्ध हो जाता है। एंड द सपोर्ट ऑफ मेडिटेशन फेल्स टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, ऑर्डर एंड हार्मनी, एंड इरिवर्सिबल डिपार्चर फॉलोज। बर्थ is the beginning of death. The movement of matter from unmanifest to manifest is the beginning of dissolution. जहां पे कुछ नहीं था, वहां पे जब कुछ आता है तो बस अंत की शुरुआत हो गई है। In the moment of manifestation is concealed the moment of dissolution. In the moment of emergence is concealed and contained the moment of merging back into its source, the moment which Kapra calls as the dance of Shiva. बस यही सारा शिव का तांडव है। हर चीज की शुरुआत, फिर उसका बिखरना। The method to surrender the movement of the physical and mental body, including the intellectual thought body, to surrender that to the ultimate divine supreme sovereign intelligence is very uncomfortable. अब हमारे शरीर पे, जिसको इतना संभाल के हमने बड़ा किया, स्थिर किया, स्थापित किया, मन जिसको इतना संभल संभल के ले आए, उसको भी स्थिर किया, स्थापित किया, अब इसे अर्पण कर देने का, शिव को, भगवान को, ईश्वर को इसे अर्पण कर देना, ये बहुत ये कंफर्टेबल बात नहीं है, ये हमें बेचैन कर देती है। व्हाट डज दैट सरेंडर मीन? ये समर्पण का क्या मतलब होता है? Surrender means directing those energies towards freedom, not allowing those energies to follow a passive pattern, a mechanistic repetitive pattern. समर्पण पता है किसे कहते हैं? आदत से मजबूर जिंदगी नहीं जीना, इसे समर्पण कहते हैं। शरीर की आदतें, मन की आदतें, इसके हिसाब से नहीं, धारणा, ध्यान, प्राणायाम के माध्यम से यू आर ट्राइंग टू परसुएट दोज एनर्जीज ऑफ द फिजिकल बॉडी टू स्लिप आउट ऑफ द पैटर्न, द नेचुरल पैटर्न ऑफ मैटर। You are trying to liberate those energies which are mechanized, patterned, repetitive, structured from mechanistic behavior. आज तक आदत से मजबूर जिंदगी जीते आए हैं। अब जब शुरुआत हो जाती है बिखरने की, तो ये सारी ऊर्जाओं को ध्यान के माध्यम से, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इसके माध्यम से हम इन ऊर्जाओं में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो आदत से मजबूर जिंदगी ना जिए। The body of a yoga student, every pore is intelligent. It wants to break through with a freshness, with a vitality which has nothing to do with the age of the body. और देखो, आदत से मजबूर मन और शरीर से छूटना, इसी को तो मुक्ति कहते हैं। This is what is freedom. To become free from the conditioned habits and repetitiveness of the body and mind. To become free. That is what it is. तो जो योग अभ्यासु है, जो योग साधक है, उसके तो कण कण में चैतन्य फैला हुआ होता है। मैटर विच हैज नथिंग टू डू विद द एज ऑफ द बॉडी। और शरीर, तुम कितने साल के हो, क्रोनोलॉजिकल एज जिसको हम कहते हैं कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है, तुम 30 साल पहले पैदा हुए थे या 40 या 50, उससे योग साधक का कोई लेना, उस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इसमें चैतन्य जागृत हो चुका है। मैटर हैज बीन लिबरेटेड फ्रॉम इनर्शिया। शरीर तमस गुण से छूट गया है, बहुत एक्टिव है, तो तामसिकता से छूट गया है। ये बात कर्म योग, भक्ति योग में नहीं होती। हाँ, शेयर लिमिटेड हठ योग, मंत्र योग, तंत्र योग। हाँ, इफ
You want proof, you can visit the ashram and see the so called bhakta and mantra yogis. ये बात कर्म योग में, भक्ति योग में, हठ योग में, मंत्र योग में, तंत्र योग में, कोई योग में नहीं होती। अगर आप विश्वास नहीं मानते, कोई भी आश्रम में जाके वहां के जो जो भक्त है उनको आप देख लो, लुक एट देयर बॉडीज, देखो उनका शरीर को देखो, look at the relationship with diet and sleep, walking, sitting, moving the body, you will see that matter has not been purified. उनके खाने पीने, चलने सोने की आदतों को देखोगे, उन उनका और उनके ऊर्जाओं का जो संबंध है, इसको उनका आहार विहार अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इतने सालों से भक्त बनकर इस आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन कोई शुद्धि नहीं हुई। कोई कहाँ पे भी शुद्धि हमें नहीं दिखती। इट हैज नॉट बीन लिबरेटेड फ्रॉम इनर्शिया, इट हैज नॉट बीन एनर्जाइज्ड इन अ न्यू वे। तो यू नो व्हाट योगा इज, योग क्या है? It is creating a new equilibrium in the material physical frame, new harmony in the mental or the thought structure and transcending them. That is yoga. योगा किसे कहते हैं? ये शरीर का जो बैलेंस है, ये बैलेंस को एक नए स्तर पे ले जाना, ये शरीर की जो शक्तियां है, जो तामसिकता है, उसमें बदलाव लाना, जो मन की जो राजसिकता है, इसमें बदलाव लाना, एक बहुत अलग स्तर पे जीना, और फिर उससे भी परा चले जाना। एक तो बॉडी और माइंड के फुल कंट्रोल में आ जाना, और बाद में उससे भी परा जाना, यानी खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देना, इसे योग कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स म्यूटेशन ऑफ द फिजिकल एंड द मेंटल। मन बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, so that the physical and mental are equipped to relate to the outer nature in a different way. तो बाहर की जो भी चीजें है ना, इनके साथ हमारा इक्वेशन ही बदल जाता है, हमारे संबंध बदल जाते हैं। Finding new ways of directing the mechanistic patterned structured energies towards liberation, towards freedom. तो एक नए मार्ग पे, जैसे कि हम नई तरह से जिंदगी जीते, जहां पे बहुत सारा फ्रीडम है, हाँ, जहाँ पे बहुत सारा लिबरेशन है। Emancipation is not only grasping some idea about transformation and intellectual identification with that idea, cerebral identification with an abstract idea. It has no meaning for life. It is an inner intellectual luxury, indulging in the self-hypnotic abstraction and identification. The purpose of life is transmutation of matter and mind contained in you, because you also contain the ईश्वर in you. हमारे अंदर ईश्वर है, ये जब हमारे ध्यान में आ जाता है तो हमारा शरीर पूरी तरह बदल जाता है, हमारा मन पूरी तरह बदल जाता है, दोनों चीजें बहुत अच्छे समत्व में आ जाते हैं, एक अलग तरह से हम जिंदगी जीने लगते हैं। It is not only out there in the cosmos that the Lord has his abode. His abode is in here too, within you. So dedicating, devoting, surrendering is not a poetic idea. तो समर्पण यानी हाँ कुछ इमेजिनेशन करो कि भाई ऐसे भगवान और मैं उनको समर्पित, ऐसा नहीं होता। समर्पण का मतलब है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाना, और पूरी तरह से परिवर्तित होने के बाद में उस विनम्र अवस्था में जीना, उसे कहते हैं समर्पण। भक्ति योगा इज कॉल्ड एज द नेक्टर ऑफ द होल गीता। कहते हैं भक्ति योग जो है ये तो अमृत है गीता का। द वर्ड भक्ति इज मोस्टली मिसअंडरस्टूड एंड मिसइंटरप्रिटेड, लेकिन भक्ति इस शब्द को हमने ठीक से समझा ही नहीं है। इट इज मिस्टेकन फॉर अ रेकलेस अबंडनमेंट of emotionalism, of excessive indulgence in the abandonment of emotions, and every imbalance, physical, verbal, mental, is justified in the name of bhakti. भक्ति के नाम पे कुछ भी करते हैं, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, भावनिक स्तर पे, तो बहुत गैर मतलब निकाला है इसका। The excitement and nervous intoxication are not only justified and defended, but claimed in the name of bhakti and spirituality. It is a dangerous word unless one probes into the fundamental or original meaning of the term in the Sanskrit language. भक्ति ये शब्द बहुत डेंजरस है।
अगर इसका संस्कृत मतलब तुम्हें समझता है तो तुम्हें कुछ न कुछ उसका अर्थ समझेगा, वरना गैर समझ ही होने वाली है। Before we proceed with this chapter, a little clarification is necessary about the dialogue between Krishna and Arjuna. Krishna and Arjuna are two mortal human beings, relations, friends. One is the teacher of the other, that is Krishna. But when in his communications he uses the first person, I and me, he refers to the eternal Krishna equated with Satchitananda, the indestructible truth intelligence, which is a characteristic of life. Chit is self-awareness contained in that truth, which releases a cohesive principle of orderliness in all its movements, and Ananda is the bliss generated by the harmony built in the cohesive orderliness of life. ये बात पहले भी बस 9वें 10वें चैप्टर में भी हमने हमें बताई थी। विमला जी यहाँ पे रिपीट करती है, कहती है अर्जुन और कृष्णा दोनों व्यक्ति है, मनुष्य रूप में है, दोस्त है, एक गुरु है, दूसरा शिष्य है, अनेक नाते हैं, अनेक संबंध है इन दोनों का। लेकिन जब कृष्ण इस मोड़ पे आकर जब खुद को मैं कहने लगते हैं, मुझे देखो, मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, जब वो फर्स्ट पर्सन में बात करने लगते हैं तो कृष्ण खुद को क्या बता रहे हैं? सच्चिदानंद बता रहे हैं। सत्य यानी क्या? जो सत्य है वो, द ट्रुथ। चित यानी क्या? वो जो सत्य को जानता है उसको कहते हैं चित, कॉन्शियसनेस। ओके, सत इज द ट्रुथ, चित इज द कॉन्शियसनेस हु इज कॉन्शियस ऑफ द ट्रुथ। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, because of that understanding, there is a feeling of bliss. वो सत और चित के वजह से मन कैसा है? आनंद में है। कण कण कैसा है? आनंद में है। So Satchitananda, indestructible truth, self-awareness in the truth, cohesive orderliness, because of the self-awareness and harmony, because of the orderliness resulting in bliss or ananda, this is the eternal law of life. बस यही जिंदगी का सार है, यही जिंदगी का नियम है। सत्य को जानो, सत्य की सजगता, सत्य की होने की सजगता, और वो सजगता के वजह से मिलने वाला आनंद। श्री कृष्ण इसी को जिंदगी कहते हैं। श्री कृष्ण एज द एक्सटर्नल लॉ ऑफ लाइफ, external principle of life, and Shri Krishna as a mortal human being, Arjuna's friend, relation and teacher. अंदर भी कृष्णा और बाहर भी कृष्णा। ओके, आगे आगे थोड़ा सा जाने देती हूँ, एक फ्यू लाइन्स। और इटर्नल कृष्णा, whom are you devoted to? And he says eternal Krishna in my heart. यहाँ पे एक बंगाली, पाली, एक संस्कृत नहीं, इनकी बात है। एक कृष्ण प्रेम नाम के व्यक्ति थे जिनको सवाल पूछा गया था, तो वेयर डज योर रिटर्न, की वो कहते थे कि मुझ में तो कृष्ण रहते हैं। तो पूछते थे कि कहाँ है, दिखाओ, तो बोलते मेरे हृदय में है। You see these two characteristics of the personality of Krishna, the son of Vasudeva, who has identified his whole being, dedicated this whole being to the eternal Krishna in him, the eternal law of life in him. He is called as the perfect incarnation of the absolute reality, because all his actions from childhood to the last breath manifest the clarity of intelligence, orderliness due to self-awareness, and a causeless, ever-bubbling bliss and ananda. कृष्ण का मनुष्य रूप और कृष्ण ब्रह्म रूप, ये दोनों एक थे। तो कृष्ण को हम अवतार कहते हैं क्योंकि परा और परा वही थे। और अगर जिंदगी देखी जाए कृष्ण की अवतार की, वसुदेव पुत्र की, अगर जिंदगी आप देखोगे पैदा होने से लेके मृत्यु तक, हरेक उनकी बातों में, उनके व्यवहार में, उनके करने में, बोलने में, हरेक में हमें सच्चित आनंद दिखेगा। सत्य से जीते थे, सजग थे, जानते थे सत्य क्या है, और इसलिए मस्त मौजी थे, तो हमेशा हंसते रहते थे। तो ये सच्चित आनंद जो है, ये कृष्ण उसका प्रतीक है। इन दिस चैप्टर दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द टू विल हैव टू बी रिमेम्बर्ड। अब ये भक्ति योग में जब हम बात करते हैं
तो कृष्ण मनुष्य या कृष्ण ईश्वर, ये फर्क जो है इसको ध्यान में रखना होगा. In this chapter, this discrimination of the two will have to be remembered. Those of you who have studied all the 11 chapters with me will remember that Arjuna has heard Sankhya Yoga, Karma Yoga, Sannyas Yoga, Akshara Brahma Yoga, Vibhuti Yoga. In the 11th chapter, he has the vision of the cosmic manifestation, यानी विश्व रूप योग. ये सब अर्जुन देख चुके हैं. इन सब के बारे में कृष्ण बात कर चुके हैं. He understood that Prakriti cosmic matter is the abode of the Purusha. और अब अर्जुन के ध्यान में, हमारे भी ध्यान में आ गया कि जो भी कुछ है सगुण कहते हैं, जो भी है अस्तित्व में उसे सगुण कहते हैं. जो भी कुछ है उसमें ईश्वर है. तो वो जो निर्गुण है वो इस सगुण में समाया हुआ है. द पुरुषा डज नॉट ड्वेल आउटसाइड ऑफ इट. सगुण निर्गुण कुछ अलग है, सगुण कुछ अलग है, वो वहां रहता है, ये यहाँ रहता है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है. जो भी सगुण है उसमें वो निर्गुण है. जो भी कुछ अस्तित्व में है, ये ब्रह्मांड जो अस्तित्व में है, इसमें ईश्वर है. क्लियर? ये पॉइंट आ रहा है ध्यान में? इज इट क्लियर? राइट? ओके. सो the Purusha does not dwell outside of isolated from the Moola Prakriti, but permeates the whole cosmic matter and makes every material expression resplendent with his splendor, with the wealth of his being. So Arjuna has that vision that matter and spirit, Prakriti and Purush, are blended together. Now he asks the question of Sri Krishna. अब अर्जुन को समझ में आ गया है पुरुष और प्रकृति अलग अलग नहीं है. पूरी हर प्रकृति के में, हर प्रकृति में पुरुष समाया हुआ है. अब अगला सवाल, आगे का सवाल अर्जुन पूछते हैं. कहता है, लुक कृष्णा, देयर सीम्स टू बी टू पाथ्स ऑफ योगा. तो कृष्ण आपकी सारी बातें सुन के ऐसे लगता है कि योग के दो मार्ग तैयार होते हैं. वन इज थ्रू प्रकृति. एक तो है सगुण से निकलेंगे, यानी प्रकृति के माध्यम से. द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, यूजिंग दोज मैनिफेस्टेशंस एज अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्कवरिंग द बिल्ट इन इंटेलिजेंस, हार्मनी एंड ब्लिस. सच्चिदानंद को जानना है तो प्रकृति के माध्यम से, ये एक मार्ग बनता है. thereby liberating the rajas from the clutches of the tamas. तमस में से रजस को मुक्त करना, and the sattva from the clutches of the rajas, and then transcending even sattva. तो प्रकृति जो तामसिक है इसको रज में परिवर्तित करे, रज को सत्व में करे, और फिर सत्व से बाहर निकल जाए, यानी परा निकल जाए. तो प्रकृति से, शरीर मन दुनिया से जैसे हम गुजरते हैं, हम जो भी तामसिक है उसको राजसिक बनाएंगे, राजसिक को सात्विक बनाएंगे, और सात्विक में से फिर हम परा चले जाएंगे. ये एक मार्ग हुआ. दैट इज वन प्रोग्रेसिव ग्रेजुअल पाथ ऑफ असेंट. इट इज एन असेंडेंस. धीरे 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 हम ऊपर उठते जाएंगे. हाँ, जो ठप्प बैठे हुए थे तमस बनकर अब गतिशील होते हुए हम परा चले जाएंगे. द अदर पाथ, ये एक मार्ग है. दूसरा मार्ग, द अदर पाथ seems to be to renounce inwardly the manyness of the manifestation, merely to turn your back on the allurement of cosmic matter and allow your mind to be grounded and rooted in the absolute reality. With one stroke of perception, observation, one stroke of understanding the truth contained in the perception, one withdraws emotionally from cosmic matter and remains rooted in the absolute reality. तो प्रकृति के मार्ग से गए तो तम को रज में बदला, रज को सत्व में बदला, और फिर सत्व को छोड़ दिया. दूसरा मार्ग ये है, सब कुछ छोड़ दो, भीतर चले जाओ. वो जो आत्मा है जहाँ पे मौन है, हृदय गुहा, उस गुहा में जहाँ पे मौन और खालीपन है, एम्प्टीनेस एंड साइलेंस, बस वहां पे जाके रह लो. दुनिया को सब चीज छोड़ दो, आप सिर्फ जाके आत्मा के साथ बैठ लो. अंदर का जो सच्चिदानंद है उसका अनुभव कर लो. हाँ, बाहर का सच्चिदानंद का वो जो धीरे 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 ऊपर चढ़ते गए, ये दूसरा ये है कि एक ही झटके में सब कुछ छोड़ दो.
मूल प्रकृति को छोड़ दो और पुरुष के साथ जाके बैठ लो। ये दो मार्ग है। There is no progressive or gradual ascendance, not a Godward ascent, but it is something that you allow to occur radically, holistically at the moment of understanding. It is an instantaneous transmutation of your whole being. बस एक झटके में समझ में आ गया अहम ब्रह्मास्मि, और उसी क्षण खुद के साथ बैठ गए, ब्रह्म के साथ लीन हो गए, खुद के अंदर के ब्रह्म के साथ लीन हो गए। यहाँ पे धीरे धीरे तम का रज, रज का सत्व, सत्व से परा शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व से परा, ये सब कोई धीरे धीरे चलना नहीं है। यहाँ पे एक झटके में एक वो बात अचानक से समझ में आ जाती है और एक झटके में परिवर्तन हो जाता है। These two paths seem to be there. ये दो मार्ग मुझे दिख रहे हैं। One deals with manifest matter, the other deals with unmanifest being. एक प्रकृति है, दूसरा पुरुष का मार्ग है। We have now got acquainted with the terms that Krishna uses to indicate the absolute unmanifest, unindividuated life. Whether with one leap of understanding you get rooted into that, using the unmanifest to unite your consciousness with it, or using the cosmic matter in your body and the cosmic matter around you for a progressive gradual ascent. धीरे धीरे बदलाव लाओ बाहर प्रकृति के माध्यम से, या एक ही झटके में पुरुष परिवर्तित हो जाओ, पुरुष अहम ब्रह्मास्मि का सच्चिदानंद के साथ स्थित हो जाओ। ये दो ऑप्शन है, ये दो मार्ग दिख रहे हैं मुझे, अर्जुन कह रहे हैं। और वो आगे पूछ रहे हैं, विच पाथ इज बेटर कृष्णा, कौन सा मार्ग बेहतर है, विच इज सुपीरियर, कौन सा अच्छा है, हु इज क्लोजर एंड डियरर टू यू, आपको कौन सा मार्ग पसंद है, आप किस मार्ग को पसंद करते हो? The one who relies on the unmanifest or the one who takes help of the manifest, वो जो प्रकृति का आधार लेता है, या वो जो पुरुष के साथ हो लेता है? कौन सा मार्ग बेहतर है, आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? और अब बस ये सवाल पूछता है अर्जुन कि आपको क्या लगता है, कौन सा मार्ग बेटर है? दैट इज द क्वेश्चन। सोचना, आप भी बैठो, सोचो कौन सा मार्ग अच्छा है और कृष्ण क्या जवाब देते हैं, हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे रुकते हैं। आई डोंट वांट टू स्टार्ट द आंसर बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट टाइम अप। और कृष्ण जवाब देते हैं इस 12वें अध्याय में, तो वो हम कल पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप में से कितने जन कल रीडिंग के लिए आ सकते हो? जरा हाथ ऊपर करो, बताओ मुझे कौन कौन आ सकता है। आओगे? कल करते हैं रीडिंग, हाँ, तो ही मंगलवार को ये किताब खत्म होगी। रश्मि एंड सुचित्रा, यस कविता, वंडरफुल, आप यू कैन कम, ऑल राइट। अंजलि नहीं आ पाएगी, बेला मी नाही आहे, मी पण। ओके, तो कल पढ़ते हैं, आप आओगे पक्का? 3 बजे शार्प रीड करते हैं, हाँ पक्का? हाँ, यस यस, हाँ चलेगा। तो कल सैटरडे है मैं जानती हूँ, पर कल हम पढ़ते हैं ताकि सैटरडे संडे मंडे शांति से ये किताब खत्म कर पाए। वैशाली जमलं तर उद्या लॉग इन हो, अच्छा रहेगा। ऑल राइट, आ रही है ये बात समझ में? सगुण निर्गुण पुरुष प्रकृति, हाँ, त्रिगुण कैसे, सत्व रज तम, अगर कोई सवाल है तो पूछो। यस, एकदम मस्त, बिलकुल। सगुण निर्गुणचं सांगा ना एकदा। सगुण आणि सगुण निर्गुण म्हणजे जे काय ज्याच्यामध्ये गुण आहे त्याला सगुण म्हणतात। गुण कुठले कुठले आहे? 3 गुण आहेत, सत्व रज तम। तो जिनमें गुण है उसको सगुण कहते हैं, और जो निर्गुण यानी जिसमें सत्व रज तम नहीं है उसे निर्गुण कहते हैं। तो सत्व रज तम कहाँ पे नहीं है? पुरुष में, वो गुणातीत है। पुरुष यानी आत्मा, ईश्वर आत्मा परमात्मा, दोन्ही पण, ब्रह्म कहो उसको, यू कैन कॉल इट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस विच इज गुणातीत।
तो उसको निर्गुण कहते हैं। तो वो डायरेक्ट वो गुणातीत उसके साथ ही बैठ ले, या प्रकृति का मार्ग अपनाए, धीरे धीरे बदलाव लाए, तमस को रज में बदलाए, रज को सत्व में लाए और शुद्ध सत्व में लाए, फिर वहां से हम परा चले जाए। तो कौन सा मार्ग हमें कल देखते हैं। अरे रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।